Good morning, student. As you know that we are discussing the last chapter of your SST book, that is making of living and rural livelihood and urban livelihood. In previous video, we have discussed about rural livelihood and we discussed about type of farmer and other occupation in villages. And one video we have discussed about urban livelihood. We discussed that video about professional occupation in cities and urban areas. In this video, we are going to discuss difference between self-employment, what is self-employment and what is regular employment and what is wage employment. If we classify the employment, Rozgar, then we find that there are three major classifications we can classify it. And after our last topic, we will discuss about rural urban link through migration. Through migration, we will discuss about the link between rural and urban area. Okay. Your first topic is self-employment. What is self-employment? We find in urban areas that many people and many professional persons set up their पर्सनल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कुछ लोग उसमें बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग अपनी शॉपकीपर्स हैं या कुछ भी है बेटा. यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक दैट इन सिटीज एंड टाउन मेजर पार्ट ऑफ पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड हु themselves run their own business and shop are they independent and run their show like income dependent. आप देखते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो खुद का रोजगार कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट एंगेज्ड इन अंडर द एनी अदर प्रोफेशन. उनका खुद की दुकान है, खुद का बिजनेस है, छोटी दुकान बड़ी दुकान कैसी है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कौन आ जाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कौन आ जाएंगे? शॉपकीपर, वेंडर एंड अदर जो बिजनेसमैन आप कर सकते हैं. Businessman etc. People who own their own profession and they are owner of their employment, it is called self-employment. Second is regular employment. Regular employment, in this type of employment, people in cities or rural area may be engaged in regular employment. They find regular salary in the last of month. तो उनका एम्प्लॉयमेंट ऐसा एम्प्लॉयमेंट होता है जो रेगुलर सैलरी पाते, सैलरी बेसिक हो, पर मंथ सैलरी बेसिक हो, तो उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. वेज एम्प्लॉयमेंट, सम अनस्किल्ड लेबर, सम अनस्किल्ड पीपल वर्क फॉर डेली वेजेस. दे फाइंड देयर वेजेस डे टू डे. तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो डेली वेजेस है. जैसे मान लो सपोज दैट कोई व्यक्ति है जाकर के कहीं पर काम करता है, उसका पैसा पा जाता है, तो वो उसका जो एम्प्लॉयमेंट होगा वेज एम्प्लॉयमेंट, उसका एम्प्लॉयमेंट होगा क्या होगा? वेज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो ये डिफरेंट क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होगा वो अपने एम्प्लॉयमेंट का खुद ऑनर होगा. रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में वो नियमित रेगुलर सैलरी बेसिस पे रहेगा, पर मंथ सैलरी बेसिस पे रहेगा. ठीक है. फिक्स रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसको फिक्स टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना रहेगा. जैसे कि आप सोच सकते हैं कोई टीचर, कोई क्लर्क है या कोई किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ प्रोफेशनल वर्क है, तो रेगुलर वर्क होगा. वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या रहेगा कि एक दिन काम करेंगे तो उसको अगले दिन आपको उसको पैसा उन्हें मिलेगा. जैसे आप लेबर हो सकते हैं, कारपेंटर, स्टोन कटर या और कितने अलग अलग प्रकार के लेबर से काम करेंगे, प्लम्बर, गए काम के पैसा पाए. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज वी सी द रूरल एंड अर्बन एरियाज. द रूरल एंड अर्बन एरियाज आर इंटरलिंकिंग विथ ईच अदर gradually. We find that a lot of people from village migrate from village to town in search of job and better situation. First of all, you
have to understand what is migration. Migration is a movement and shifting from one place to another place. Maybe from rural area to urban area. It may be from urban area to rural area. So this is called migration. So people are migrating from village area to urban area in search of job and employment. In urban area, the professional person are getting better opportunity in finding the labor from rural area. तो गांव से लोग शहरों में जाकर काम कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है, और गांव के लोग जो है वो एक बेहतर जॉब या बेहतर एम्प्लॉयमेंट शहरों में पा रहे हैं, उनसे वो पैसा पा रहे हैं। तो पैसा पा करके जो हमारी जो गांव की जो स्टेटस है वो इंक्रीज हो रही है। तो शहरों की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, और गांव की जो स्टेटस है, गांव के लोगों की जो लेबर्स है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको भी अपना लिवलीहुड मिल रहा है। यानी गांव के लोगों को शहरों में लिवलीहुड मिल रहा है, और शहर के लोगों को उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अगर आप देखोगे तो किस तरीके से कि जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेसमैन है वो डिपेंड होते हैं, बिजनेसमैन है शहरों के शॉपकीपर, वो डिपेंड है कि रूरल एरिया के जो लोग हैं लेबर्स हैं उन पे डिपेंड है, और रूरल एरिया के लेबर्स शहरों पे डिपेंड है। लोग शहरों में, आप गाँव में देखते हो कि बहुत से लोग शहर में जाकर के काम करते हैं, और शहर में काम करते हैं, शहर में काम वर्क की नीड है, तो वहाँ पर उन्हें मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि लिंक मिल रहा है, और थ्रू माइग्रेशन क्या है? सिंपल नहीं कि दूसरे जगह पे जाना, शिफ्ट होना काम करने के लिए, हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। तो वो डिफरेंट बात है कि लॉन्ग टाइम के लिए हो कि शॉर्ट टाइम के लिए। माइग्रेशन टर्म जो यूज किया जाता है वो इसी टर्म में होता है। और इस तरीके से आप देखते हैं कि रूरल पीपल जो है वो अपनी फैमिली को सेव कर रहे हैं फ्रॉम स्टारवेशन। मतलब जो गांव के लोग हैं उनको अगर जॉब मिल रहा है, उनको इनकम मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो वो अपने परिवार को बचा रहे हैं भुखमरी से, गरीबी से। और शहर के लोग, अर्बन एरिया के लोग, वो रूरल एरिया के लेबर से अपना ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मेकिंग ऑफ लिविंग रूरल लिवलीहुड एंड अर्बन लिवलीहुड में आपको हम एक बार समराइज कर देते हैं। इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा है कि आपको लिवलीहुड क्या है उसको डिफिनेशन याद रखना है। रूरल लिवलीहुड में बेटा रूरल गांव के लोग कौन कौन सा रोजगार करते हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए कौन सा व्यवसाय करते हैं, उनके उसी को लिवलीहुड कहते हैं। और लिवलीहुड की लिवलीहुड डिफरेंट है, शहरों की लिवलीहुड, अर्बन एरिया में लिवलीहुड डिफरेंट है। इसी को अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो आप जनरली यू सी अराउंड यू दैट इन विलेज एरिया पीपल आर एंगेजिंग इन विच ऑक्यूपेशन, एंड इन अर्बन एरिया पीपल आर engaged in which type of occupation you can simply classify. So that is your chapter. In this way, student, I want to inform you that your all the chapters are explained by former teacher and left chapters are explained by me. Okay, let me recall the chapters name. There are 15 chapters in our history portion and 16 to 23 geography. And 30 last chapter making a living, rural livelihood and urban livelihood. If any student has any confusion type of, then you can ask me. हिस्ट्री के 3 चैप्टर में आया था तो नहीं कंप्लीट था बेटा, वो मैंने क्लियर कर दिया था आप लोग का। अब बेटा जिस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का नहीं गया है उसको मैं PDF 2 दिन में आपको क्लियर कर देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। और दिस इज मैंडेटरी दैट कंप्लीट योर नोटबुक एंड राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर एंड सेंड मी योर पिक ऑफ योर नोटबुक एंड प्रिपेयर फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन 3rd टर्म। तो ओके बेटा, इस एक्सरसाइज को फिल करने का सोचिए, मैं आपको इसका PDF टुमारो सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।